Okay, so first of all, let's talk about what reading is. Or what if I ask you, what do you mean by reading? Or do you even know what reading is? Your quick answer will be, yeah, of course, we know what reading is. It is simply saying out a text that is written anywhere. हम कभी भी रीडिंग को एक हेल्पिंग टूल की तरह नहीं देखते. हम हमेशा रीडिंग को एक स्ट्रैटेजी मानते हैं जो हमें किसी भी एक टॉपिक की वोकैबुलरी जानने में हेल्प करता है. दैट्स इट. वी नेवर कंसिडर इट एज समथिंग जो हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में हेल्प कर सकता है. बट व्हाट इफ अगर हम रीडिंग की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम उसकी तरफ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, तो मे बी देन इट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक. लेट्स ट्राई दिस आउट. Consider reading as a brain exercise for yourself. Why brain exercise? Because when you read out a text, तो आपका brain उसी direction में work करता है जिस direction में text आता है. So there are a lot of directions in which your brain moves and makes it to exercise a lot, which can definitely help you to increase your concentration, increase your focus in what you are studying. Secondly, you can consider reading as a self-teaching tool for yourself, and when you self-teach yourself, you definitely get things in your head very well. Thirdly, if I talk about reading as a tool which can make you to visualize things very well in your head, then it can be considered as a very helpful strategy to actually imagine the things which you are studying as a text. So just change your perspective towards the definition of reading, and then it can be proven as a helping tool for you. Great readers make great writers. Great writers make great communicator. Great communicator make great persuader. And you know what great persuader make? They make a great society. These are the words of Luke Beckett, a teenager boy who expressed his view on reading. So now the question arises, why he emphasized so much on reading? Why reading is important? So in this video, we are just find the answer of this question. रीडिंग करने से हमारा माइंड और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, जिससे कि हम हर किसी काम में जो भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसमें हमारा फोकस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. ये सिर्फ हमारी एकेडमिक्स के लिए ही अच्छा नहीं, इवन स्पोर्ट्स और हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उन सभी के लिए अच्छा है. डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग. जब हम बुक रीड करते हैं तो हमारा माइंड उसे इमेजिन करता है और इससे हमारी इमेजिनेशन पावर और हमारी क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ होती है, जो हमें मूवी देखते टाइम या फिर कोई गेम खेलते टाइम ऐसा कभी भी नहीं होता. सो रीडिंग करने से हमारा माइंड क्रिएटिव और इमेजिनेटिव दोनों एक साथ हो जाता है. डेवलप द ओपिनियन. बुक्स इस मामले में बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं. इवन बुक्स में हमें कभी भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक के बारे में नहीं बात होती है, दोनों के बारे में बात होती है. हमें पॉजिटिव फेज भी बताया जाता है और नेगेटिव फेज. और इससे क्या होता है कि हम अपना एक पर्सनल ओपिनियन बिल्ड कर पाते हैं. बिल्ड आवर वोकैबुलरी एंड नॉलेज. किताब पढ़ने से सिर्फ हम उस किताब को पढ़ते ही नहीं, इवन जब उसकी वोकैबुलरी, उसके अंदर के जो भी वर्ड्स हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमारे माइंड में फीड हो जाती है. सो ये हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है. After all these points, I'm 100% sure that you get familiar with the importance of reading and you really want to become a reader as soon as possible. But on the other hand, you are confused then how to develop reading habit. So don't worry, I'm here for that. Step number 1. Choose a reading material. It can be a book, it can be a newspaper, it can be a magazine. It's not compulsory that you choose any novel. Just choose anything, whatever you like to read. Step number 2. Set a goal. और it can be different from person to person. Because एक इंसान एक दिन में पूरी बुक भी पढ़ता है और कोई इंसान एक दिन में पूरी 10-10, 15-15, 20-20 पन्ने भी पढ़ सकता है.
but for a beginner, just start with the 5 pages per day. स्टेप नंबर 3, सेट टाइम एंड डे। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक रीडर बनने के लिए और अपनी रीडिंग स्किल्स जनरेट करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए आपको पर डे उस पर वर्क करना पड़ेगा। लाइक आज आपने 5 पेजेस पढ़े तो अगले दिन 10, दिन 15, 20, 25 ऐसे। स्टेप नंबर 4, डिस्कशन। ये वाला पार्ट पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक वट एवर यू रीड, जस्ट डिस्कस विद एनीवन। ये पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे किसी को बताना या फिर किसी के साथ डिस्कस करने से वो नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप। सो एट द एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग हियर। सो बी विद अस and be curious and keep learning.